Let us see our next question. You have been engaged to evaluate an investment project overseas in a country called East Africa. So the question is providing the information that say you are engaged in a evaluation of a project which is outside your own country, that is in East Africa, which is a political stable country. The project involves an initial cost of, highlight the portion, 15,000 East African dollar. यानी हमको इनिशियल इन्वेस्टमेंट करना है 15,000 ईस्ट अफ्रीकन डॉलर का, एंड इट इज एक्सपेक्टेड टू अर्न पोस्ट टैक्स कैश फ्लोज एज फॉलोज. तो ये प्रोजेक्ट में से हमको कैश फ्लोज क्या मिलेगा वो दे रखा है. फर्स्ट ईयर के एंड में 7,500 ईस्ट अफ्रीकन डॉलर और सेकेंड ईयर के एंड में 9,500. फर्दर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो अवेलेबल. सो हमको कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखा है. द एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन रेट इन ईस्ट अफ्रीका इज 3%. Real interest rate of India as well as East Africa is same and expected to remain same during currency of the project. ये इंफॉर्मेशन देने का हमको जरूरत नहीं है. क्यों? बिकॉज दिस इज एन अजम्पशन दैट से वी ऑलवेज मेक कि जो रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो अक्रॉस द वर्ल्ड सेम ही होगा. स्पॉट एक्सचेंज रेट दे रखा है 2 ईस्ट अफ्रीकन डॉलर पर रुपी. Risk-free rate of interest in East Africa is 7%, while in India it is 9%. Discounting rate, required rate of return हमको दे रखा है 16% का. You may make suitable, generally acceptable assumptions in order to evaluate the project. Present value factor दे रखा है फर्स्ट ईयर का और सेकेंड ईयर का at the rate of 16%. I request all of you to go through the question. फिर हम लोग डिस्कस करते हैं कि इसको कैसे करने का. Let us have understanding of the question. Do not write anything. Based on the information given, we understand that there is an Indian company which is considering to take up a project in East Africa. The question is providing the information कि ईस्ट अफ्रीका में जब हम लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे तो कुछ इन्वेस्टमेंट लगेगा, फिर हमारा रेवेन्यू आएगा, एक्सपेंसेस का पेमेंट होगा. टेकिंग इनटू अकाउंट एवरीथिंग, वी ऑलरेडी हैव मेड प्रोजेक्शन ऑफ द कैश फ्लोज इन ईस्ट अफ्रीकन डॉलर टर्म. दैट इज प्रोवाइडेड टू अस फॉर ईयर 0, फॉर एंड ऑफ ईयर 1 एंड फॉर एंड ऑफ ईयर 2. दैट इज व्हाट्स प्रोवाइडेड टू अस. The question is providing the information that say what is the spot exchange rate. It is 2 East African dollar per rupee. The question is providing with the information about the rate of interest. For East African dollar currency 9%, for rupee currency it is, sorry, East African dollar currency 7 and for rupee it is 9. Inflation rate information is given for one currency and for the other it has not been given. उसके अलावा क्वेश्चन में हमको डिस्काउंटिंग रेट यानी कॉस्ट ऑफ कैपिटल दे रखा है कंपनी का, इट इज 16%. और हमको यहाँ पे ये डिसाइड करना है दैट से वेदर द प्रोजेक्ट शुड बी अंडरटेकन और नॉट. दिस डिसीजन इज ऑफ कोर्स रिक्वायर्ड टू बी टेकन फ्रॉम द इंडियन कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू. Friends, over here we understand that this is a kind of question in which we can say that it is like the evaluation of the project overseas, ऐसा कुछ दे है. तो इसका मतलब ये है that say we are required to take a decision that whether to undertake the project overseas or not. एक कैपिटल बजटिंग जैसा ये एक क्वेश्चन है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन. पर यहाँ पे क्या होगा, नॉर्मल कैपिटल बजटिंग जैसा नहीं है. नॉर्मल कैपिटल बजटिंग के साथ साथ वी आर रिक्वायर्ड टू इनकॉर्पोरेट एडिशनली द कॉन्सेप्ट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिस्क मैनेजमेंट. ये जो क्वेश्चन होता है, ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देयर आर बेसिकली 2 मेथड्स दैट वी हैव.
One is given a name as, technically it is called like the home currency approach, and another is given a name as foreign currency approach. ऐसा करके दो अप्रोचेस है based on which say we can take the decision. One is given a name as home currency approach and another is given a name as foreign currency approach. In absence of an information we can do answer by either of the method. मैं आपको सबसे पहले होम करेंसी अप्रोच से ये क्वेश्चन समझाता हूँ. Since it is an initial question इसलिए मैं दोनों मेथड से आपको ये क्वेश्चन करवाऊंगा, और एग्जामिनेशन में अगर कुछ क्लेरिफिकेशन नहीं है कि कौन सा अप्रोच आपको अडॉप्ट करना है, then in that case you can adopt either of the approach and it is going to lead to say the same decision. How to do that, say that is what say now we are going to discuss. तो सबसे पहले हम लोग होम करेंसी अप्रोच यहाँ पे डिस्कस करते हैं. होम करेंसी अप्रोच में बहुत आसान है फ्रेंड्स. You can see that say we have been provided with the spot exchange rate information and the rate of interest information have been given to us. So हम लोग क्या कर सकते हैं, using interest rate parity theorem we can make the calculation of the exchange rate likely to prevail at the end of the first year, likely to prevail at the end of the second year. उसके बाद ये जो हमारा कैश फ्लोस ईस्ट अफ्रीकन डॉलर करेंसी टर्म में है उसको हमें रुपीस टर्म में कन्वर्ट करना है. Whatever the cash flows that we have in East African dollar currency, that will be converted into rupees currency, and for that we will use say the interest rate parity theorem. Once we make the computation of the cash flows in the rupees term, उसके बाद say it will be discounted at the rate of 16% in order to calculate NPV. NPV अगर पॉजिटिव है तो हम लोग हाँ बोलेंगे, अगर नेगेटिव है तो हम लोग मना करेंगे. That is the way we are supposed to take the decision. एक पहले छोटा सा नोट लिखते हैं. Read on heading investment decision with foreign exchange risk management. In that, write down first point. In this question, from an Indian company point of view, we have to decide whether to undertake a project in East Africa or not. Full stop. Second point, for this decision making, generally we have two methods. First, home currency approach. Second, foreign currency approach. Third point,
In case of home currency approach, comma, we have to convert foreign currency cash flows into home currency and it will be discounted at risk adjusted cost of capital. Full stop. Now write down heading method number one. उसमें लिखो होम करेंसी अप्रोच। क्योंकि ये क्वेश्चन हम लोग दूसरे मेथड से भी करेंगे। उसमें लिखो स्टेप नंबर वन, कैलकुलेशन ऑफ फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट using calculation of forward exchange rate, full stop। उसके बाद लिखो मेथड नंबर वन। ये फर्स्ट स्टेप में जो फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट फाइंड करना है वो मैं दो मेथड से करवाता हूँ। मेथड नंबर वन, उसमें लिखो परचेसिंग पावर पैरिटी थ्योरम। परचेसिंग पावर पैरिटी थ्योरम। I want somebody of you to put answer in the chat box that say ये मेथड में फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट फाइंड करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा। प्लीज पुट योर आंसर इन द चैट बॉक्स। ना फ्रेंड्स, बेसिकली क्या होगा, ये फर्स्ट मेथड में हमको कुछ ऐसा करना पड़ेगा wherein we understand that say we are required to make the calculation of the inflation rate of rupee currency, जो कि हमको क्वेश्चन में दे रखा नहीं है। क्वेश्चन में बहुत अच्छा क्लैरिफिकेशन दे रखा है कि रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों करेंसीज का सेम है। अगर ऐसा नहीं भी दे रखा होता तो भी हम लोग ऐसा ही मान लेते। However, that information is given to us expressly. So taking into account the inflation rate of East African dollar currency and the rate of interest of both the currencies will make the calculation of the inflation rate for rupee currency. चलो मेरे साथ साथ आंसर लिखिए आप लोग फ्रेंड्स। मेथड नंबर वन में हमको क्या करना पड़ेगा फ्रेंड्स, राइट डाउन आंसर। वर्किंग नोट नंबर वन, calculation of inflation rate of rupee currency। आई वॉन्ट यू टू टेल मी आंसर दैट द रूपी करेंसी का इन्फ्लेशन रेट क्या होगा ये एग्जाम्पल में। प्लीज पुट योर आंसर इन द चैट बॉक्स। So friends, we understand something like this, that rupee currency and East African dollar currency, it is 1 plus nominal rate of interest divided by 1 plus inflation rate is equal to, once again, 1 plus nominal rate of interest divided by 1 plus inflation rate. That is the way we can put the formula.
रुपी करेंसी का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्वेश्चन में दे रखा है 9%, सो 1.09। उसके इन्फ्लेशन रेट के लिए हमको पता नहीं है, इसलिए 1+x। ईस्ट अफ्रीकन डॉलर करेंसी का नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट है 7%, और उसका इन्फ्लेशन रेट हमको दे रखा है 3%। तो ऐसा करके हमको इन्फ्लेशन रेट रुपी करेंसी का फाइंड करना है। तो क्या किया जाएगा, दिस इज 1+x इज इक्वल टू 1.09 इंटू 1.03 डिवाइडेड बाय 1.07। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये इन्फ्लेशन रेट का कैलकुलेशन करेंगे। इट इज 1.09 इंटू 1.03 डिवाइडेड बाय 1.07। ये जो भी आंसर है उसमें से हम लोग क्या करेंगे, 1 को डिडक्ट करेंगे in order to get the answer in percentage term. So 1.09, I'm sorry, 1.09 into 1.03 जो भी आंसर है डिवाइडेड बाय 1.07, जो भी आंसर है -1 into 100 for getting answer in percentage term, so 4.9252। तो ऐसा करके हमको रुपी करेंसी का इन्फ्लेशन रेट मिल जाएगा। वंस वी फाइंड द इन्फ्लेशन रेट ऑफ द रुपी करेंसी, उसके बाद हम लोग फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट कैलकुलेट करेंगे। सो वी अंडरस्टैंड दैट से द कैलकुलेशन ऑफ फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट एज पर परचेसिंग पावर पैरिटी थ्योरम। उसमें फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट का कैलकुलेशन स्पॉट इनटू 1 प्लस इन्फ्लेशन रेट रेज टू n डिवाइडेड बाय अगेन 1 प्लस इन्फ्लेशन रेट रेज टू n। बेसिकली फ्रेंड्स हम लोग ऐसा समझते हैं that so the inflation rate is assumed to be on annually compounded basis. Spot exchange rate है 2 ईस्ट अफ्रीकन डॉलर पर रुपी इंटू क्या किया जाएगा 1.03 किया जाएगा डिवाइडेड बाय 1.049252। सब्सिक्वेंट ईयर के लिए एग्जैक्टली सेम वर्किंग होगा डियर स्टूडेंट्स, 2 इंटू 1.03 रेज टू 2। इन्फ्लेशन रेट को एनुअली कंपोनेंट माना जाएगा डिवाइडेड बाय 1.049252 रेज टू 2। ऐसा करके हमको फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट फाइंड करना है फर्स्ट ईयर का और सेकेंड ईयर का। तो फर्स्ट ईयर का आंसर कैसे कैलकुलेट होगा, वी अंडरस्टैंड लाइक दिस, इट इज 2 इंटू 1.03 डिवाइडेड बाय 1.049252, that comes to 1.9633। सेकेंड ईयर का कैसे कैलकुलेट होगा फ्रेंड्स, इट इज 1.03 इंटू 1.03 यानी 1.03 का स्क्वायर हो गया इंटू 2, तो ये न्यूमरेटर का वैल्यू हो गया डिवाइडेड बाय 1.049252 divided by 1.049252, that comes to 1.9273। that is the way the second year is calculated। ये हमारा नॉर्मल तरीका है जिसमें हमको कुछ दिमाग नहीं लगाने का है। एक छोटा सा शॉर्टकट मेथड है, आई जस्ट ट्राई टू एक्सप्लेन यू, आई एम नॉट श्योर दैट हाउ फार इट वुड बी हेल्पफुल टू यू। देखो ये आंसर अगर आपका हो जाए ना एक बार 1.9633 इंटू क्या करो फ्रेंड्स 1.03 डिवाइडेड बाय क्या करो 1.049252, तो अपने को डायरेक्टली आंसर मिल जाएगा। यानी कि जो है फर्स्ट ईयर का रेट हम लोग फाइंड करते हैं ना, उसी को वापस क्या करो इंटू 1.03 करो डिवाइडेड बाय 1.049252 करो, तो हमारे पास यही आंसर आ जाएगा जो हमने नॉर्मल मेथड से किया है। दैट इज द वे यू कैन डू इट। दूसरा एक मेथड आपको बताता हूँ फ्रेंड्स, आप पहले क्या कर दो कैलकुलेटर में 1.03 डिवाइडेड बाय
1.049252, ये वैल्यू को है ना फ्रेंड्स आप मेमोरी प्लस में डाल दो, ये वैल्यू को आप मेमोरी प्लस में डाल दो. Now what happens at say 2 into memory recall, you get the answer of the first year rate. और कुछ नहीं करना है, लिसन केयरफुली. 2 दैट इज ये जो वैल्यू आए ना इनटू वापस मेमोरी रिकॉल, यू प्रेस इज इक्वल टू, you'll get the second year. यानी क्या करो फ्रेंड्स, 1.03 डिवाइडेड बाय 1.049252 उसको मेमोरी में डाल दो. ये जो वैल्यू आता है ना इनटू 2, तो हमारे पास फर्स्ट ईयर का रेट आ जाएगा. और कुछ नहीं करना है, ये जो वैल्यू है ना उसको मेमोरी में जो वैल्यू है ना उसके साथ वापस मल्टीप्लाई करो, आपका सेकेंड ईयर का रेट आ जाएगा. एंड सो ऑन से आपको ये रेट्स आगे मिलते ही जाएंगे. दैट इज द वे यू कैन हैव अ शॉर्टकट मेथड फॉर डूइंग आंसर. तो ये हमारा स्टेप नंबर 1 चल रहा है, उसमें फर्स्ट मेथड खत्म हुआ. अभी हम लोग मेथड नंबर 2 करेंगे. मेथड नंबर 2, ये जो हमारा स्टेप नंबर 1 चल रहा है फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट. मेथड नंबर 2 जिसमें हम लोग क्या करेंगे फ्रेंड्स, हम लोग अगेन फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट का ही कैलकुलेशन करेंगे, बट दिस टाइम वी विल यूज इंस्टेड ऑफ परचेसिंग पावर पैरिटी थ्योरम वी विल यूज इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरम. इट इज IRPT. दैट इज व्हाट वी विल डू. उसमें हम लोग क्या करेंगे, अगेन ईयर 1 और ईयर 2 ऐसा किया जाएगा. It is forward exchange rate is equal to spot into 1 plus rate of interest for left hand side currency raised to n divided by 1 plus rate of interest for right hand side currency raised to n once again. यानी क्या करना है कि सिंपल हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट का इंफॉर्मेशन जो क्वेश्चन में डायरेक्टली दे रखा है उसी का यूज करना है. सो इट इज 2 into 1.07. क्यों? क्योंकि 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट है ईस्ट अफ्रीकन डॉलर करेंसी का, डिवाइडेड बाय 1.09. सब्सिक्वेंट ईयर के लिए क्या होगा, 2 into 1.07 रेज टू 2 डिवाइडेड बाय 1.09 रेज टू 2. इसका कैलकुलेशन मैं आपको डायरेक्टली शॉर्टकट मेथड से समझाता हूं. आई होप दैट इज ओके टू ऑल ऑफ यू. देखो कैसे करने का डियर स्टूडेंट्स, 1.07 डिवाइडेड बाय 1.09, ये एक फैक्टर आ गया ना फ्रेंड्स, उसको क्या करो आप m प्लस में डाल दो, m प्लस में. अच्छा, नाउ व्हाट यू डू, स्पॉट एक्सचेंज रेट कितना है फ्रेंड्स, 2. सो 2 into आप क्या करो फ्रेंड्स, MR दैट इज मेमोरी रिकॉल. उसके बाद यू प्रेस इज इक्वल टू, देखो आपको फर्स्ट ईयर का रेट मिल गया और फर्स्ट ईयर का रेट है 1.9633. ये जो भी आंसर है इनटू क्या करो फ्रेंड्स, अगेन MR मेमोरी रिकॉल एंड यू प्रेस इज इक्वल टू, यू गेट 1.9273. ऐसा करके हमको क्या मिलेगा फ्रेंड्स, हमको सेकेंड ईयर का रेट मिल जाएगा. दैट इज द वे यू कैन डू इट. देखो 2 साल में कुछ ये शॉर्टकट बहुत अपने को हेल्प नहीं करेगा, बट अगर नंबर ऑफ इयर्स बहुत ज़्यादा है, क्योंकि कई बार क्या होता है 10-10 साल के भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 5 साल के भी पूछे जाते हैं, तो ये शॉर्टकट मेथड आपको थोड़ा हेल्प कर सकता है. सो दिस इज द वे द फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट इज फाउंड फॉर फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर यूजिंग IRPT. ये स्टेप नंबर 1 जिसमें हमने फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट कैलकुलेट किया. उसके बाद स्टेप नंबर 2, in that conversion of foreign currency into domestic currency. चलो एवरीबडी प्लीज पे अटेंशन. ये हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कुछ ऐसा करेंगे.
लिसन केयरफुली। देखो हमको स्पॉट एक्सचेंज रेट दे रखा है 2 ईस्ट अफ्रीकन डॉलर पर रुपी, ऐसा हमको स्पॉट एक्सचेंज रेट दे रखा है। तो देखो ईस्ट अफ्रीकन डॉलर रुपी 2 ईस्ट अफ्रीकन डॉलर इज इक्वल टू 1 रुपी। वी अंडरस्टैंड दैट्स ओवर हियर से क्वेश्चन में ऐसा दे रखा है कि हम लोग 15,000 ईस्ट अफ्रीकन डॉलर का इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। तो मैं ये वर्किंग नोट में क्या कर रहा हूँ फ्रेंड्स पता है, ये 15,000, ये वर्किंग नोट में मैं क्या कर रहा हूँ 15,000 ईस्ट अफ्रीकन डॉलर का इक्वलेंट रुपीस टर्म में वैल्यू फाइंड कर रहा हूँ। कैसे? इट इज 15,000 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 2। इसका मतलब ये है कि जो भी हमारा कैश फ्लोस है ईस्ट अफ्रीकन डॉलर करेंसी टर्म में, उसको क्या किया जाएगा, उसको एक्सचेंज रेट से डिवाइड किया जाएगा। सो डिवाइडेड बाय एक्सचेंज रेट ऐसा किया जाएगा। इट इज ईस्ट अफ्रीकन डॉलर पर रुपी। सो दिस इज द वे। स्टेप नंबर 2 में हम लोग फॉरेन करेंसी के कैश फ्लोस को डोमेस्टिक करेंसी में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे, उसका मैं वर्किंग कर रहा हूं। देखो मैं ये वर्किंग इसलिए कर रहा हूँ फ्रेंड्स क्योंकि कई बार क्या होता है दैट द स्टूडेंट्स आर हैविंग अ कंफ्यूजन दैट से हाउ टू डू कन्वर्जन, मल्टीप्लिकेशन से होगा या डिवीजन से होगा। दैट इज द रीजन से आई डू दिस से अ स्मॉल वर्किंग। दिस स्टेप इज बेसिकली टू मेक श्योर दैट से हमारा कहीं पे भी सिली मिस्टेक ना हो। दैट इज द रीजन से आई सजेस्ट यू टू डू दिस स्टेप। उसके बाद स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3 उसमें हम लोग करेंगे कैलकुलेशन ऑफ एनपीवी। I request all of you to pay attention for 2 minutes. Let me give explanation to you. Column number 1 year, starting from year 0, 1 and 2. Cash flows ईस्ट अफ्रीकन डॉलर करेंसी टर्म में जो हमको क्वेश्चन में रेडीमेड दे रखा है। एक्सचेंज रेट ईस्ट अफ्रीकन डॉलर पर रुपी, स्पॉट रेट हमको क्वेश्चन में दे रखा है, और एट द एंड ऑफ ईयर 1 एंड 2 एक्सचेंज रेट क्या होगा उसका हमने कैलकुलेशन किया है यूजिंग IRPT एंड ट्रिपल पीटी। वापस हम लोग कैश फ्लोस कैलकुलेट करेंगे रुपीस टर्म में, उसके बाद उसको डिस्काउंट करेंगे एट द रेट ऑफ 16%। फॉरेन करेंसी के कैश फ्लोस को हमने डोमेस्टिक करेंसी में कन्वर्ट कर दिया है। कन्वर्जन के लिए क्या किया जाएगा, फॉरेन करेंसी के कैश फ्लोस को एक्सचेंज रेट से डिवाइड किया जाएगा। जो भी हमारा रुपी करेंसी का कैश फ्लोस होगा उसको डिस्काउंट करेंगे 16% से, एंड उसके बाद हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू आएगा। जो भी हमारा प्रेजेंट वैल्यू है उसके ऊपर से एनपीवी का कैलकुलेशन। दिस इज द वे वी आर रिक्वायर्ड टू मेक द एनपीवी कैलकुलेशन। सो बेसिकली यहाँ पे क्या होगा फ्रेंड्स, ईयर 0, एंड ऑफ ईयर 1 एंड एंड ऑफ ईयर 2, 15,000 ईयर 0 कैश आउटफ्लो, और इनफ्लो दे रखा है हमको 7,500 और 9,500। सो दिस इज 7,500 and this is 9,500. The spot exchange rate is 2. Exchange rate at the end of the first year and second year 9633 and 1.9273. उसके बेसिस से रुपी करेंसी का कैश फ्लो डिस्काउंटिंग के लिए फैक्टर्स दे रखा है फ्रेंड्स, उसको यूज किया जाएगा एंड बेस्ड ऑन दैट एनपीवी। प्लीज राइट डाउन आंसर। Try to calculate NPV answer and put your answer in the chat box for the NPV. So now आगे का वर्किंग कुछ ऐसे होगा। It is 15,000 का कैश आउटफ्लो है डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि डिवीजन करेंगे वो हमने स्टेप नंबर 2 में कर दिया है। So it is 7,500 का आउटफ्लो, then 7,500 divided by 1.9633।
So over here it is 7500 divided by 1.9633. So 3820.10. 3820.10. उसके बाद 9500 का इनफ्लो, अगेन उसको डिवाइड किया जाएगा विथ 1.9273. So we understand 9500 divided by 1.9273. So 4929.18. एक बार हमारे पास फॉरेन करेंसी के कैश फ्लोज आ गए, उसके बाद उसको डिस्काउंट करेंगे एट द रेट ऑफ 16%. ईयर जीरो का फैक्टर होगा ऑफकोर्स 1. The discounting factors have been given over here, 8621 and 7432. So it is 8621 and 0.7432. Now 3820.10 into 0.8621, that comes to 3293.31. 4929.18 into 0.7432, 3663.37. So 3293.31 plus 3663.37, जो भी टोटल है उसमें से 7500 हम लोग डिडक्ट करेंगे, तो फाइनल आंसर हमारा आएगा -543.32. आई एम सॉरी, अनफॉर्चुनेटली द एनपीवी इज नेगेटिव, इसलिए हम लोग ऐसा एडवाइस करेंगे कि प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए. चलो, तो फॉरेन करेंसी के कैश फ्लोज को डोमेस्टिक करेंसी में कन्वर्ट किया, उसको डिस्काउंट करके हमने एनपीवी निकाला. सो द डिसीजन इज डू नॉट एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट. तो हम लोग ऐसा बोलेंगे दैट इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए. चलो, अभी हम लोग मेथड नंबर 2 समझ रहे हैं, फिर मैं दोनों मेथड का समरी दे देता हूं. मेथड नंबर 2, दैट इज फॉरेन करेंसी अप्रोच. ना फ्रेंड्स, फॉरेन करेंसी अप्रोच में क्या किया जाएगा? फॉरेन करेंसी अप्रोच में वी अंडरस्टैंड दैट से देयर आर अगेन 3 थिंग्स दैट से वी हैव टू डू. हम लोग सबसे पहले ऐसा करेंगे, हम लोग फॉरेन करेंसी अप्रोच में लॉजिकली स्पीकिंग ये जो फॉरेन करेंसी के कैश फ्लोज है ना, उसी को डायरेक्टली डिस्काउंट करेंगे. उसको कौन से रेट से डिस्काउंट करेंगे? उसको फॉरेन करेंसी एडजस्टेड कॉस्ट ऑफ कैपिटल से डिस्काउंट करेंगे. देखो, हमारा डोमेस्टिक करेंसी का कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है? 16% है. टेकिंग इनटू अकाउंट, लिसन केयरफुली, टेकिंग इनटू अकाउंट आइदर रेट ऑफ इंटरेस्ट और टेकिंग इनटू अकाउंट द इन्फ्लेशन रेट, हम लोग कैलकुलेट करेंगे फॉरेन करेंसी का एडजस्टेड कॉस्ट ऑफ कैपिटल. वो जो आंसर आता है वो रेट से हम लोग ये कैश फ्लोज को डायरेक्टली डिस्काउंट करेंगे. एनपीवी आ जाएगा. एज वी हैव डिस्काउंटेड ईस्ट अफ्रीकन डॉलर विद रिस्क एडजस्टेड, और वी कैन से दैट्स द फॉरेन करेंसी एडजस्टेड कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जो भी हमारा रिजल्टेंट आंसर होगा दैट वुड बी इन द ईस्ट अफ्रीकन डॉलर करेंसी टर्म. जो भी हमारा ईस्ट अफ्रीकन डॉलर करेंसी टर्म में एनपीवी आता है, बेस्ड ऑन दैट से वी कैन टेक डिसीजन कि प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करना चाहिए या हमको प्रोजेक्ट को रिजेक्ट करना चाहिए. इन स्पाइट ऑफ दैट हम लोग क्या करेंगे फ्रेंड्स, लिसन केयरफुली, यूजिंग द स्पॉट एक्सचेंज रेट इंफॉर्मेशन, हम लोग ये जो फॉरेन करेंसी का एनपीवी है ना, उसको हम लोग डोमेस्टिक करेंसी में कन्वर्ट करेंगे. वी नो दैट द एनपीवी इज ऑफ ईयर जीरो. इस वजह से वी विल यूज द स्पॉट एक्सचेंज रेट फॉर द पर्पस ऑफ कन्वर्जन ऑफ फॉरेन करेंसी that is NPV into home currency NPV. Once we make the calculation of this, of course वो नेगेटिव है तो ये भी नेगेटिव होगा, और वो पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव होगा. उसके बेसिस से हम लोग आंसर लिखेंगे.
generally the answer which is presented say in the suggested answer has this element. वो लोग क्या करते हैं, वो जो भी एनपीवी होता है ना फ्रेंड्स, उसको डोमेस्टिक करेंसी में कन्वर्ट करके वो लोग आंसर लिखते हैं. दैट इज द रीजन आई सजेस्ट ऑल ऑफ यू टू डू आंसर अकॉर्डिंगली. सो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू राइट डाउन आंसर अलॉन्ग विथ मी. फॉरेन करेंसी अप्रोच, उसमें लिखिए in this method, comma, foreign currency cash flows will be discounted with foreign currency adjusted cost of capital. Full stop. उससे भी लिखिए आगे. We will find foreign currency adjusted cost of capital using inflation rates or interest rates. Full stop. Sure. Now write down answer. Step number 1, calculation of foreign currency adjusted cost of capital. उसमें लिखिए आप लोग मेथड नंबर 1. उसमें लिखिए यूजिंग इंटरेस्ट रेट्स. तो इंटरेस्ट रेट्स को यूज करके विल मेक द कैलकुलेशन. Rupee currency and East African dollar currency. Now everybody is requested to pay attention. Do not write anything. देखो, हम लोग कुछ ऐसा समझ सकते हैं कि मेरी खुद की कंट्री में, that is in rupees term, the rate of interest is 7%. ये प्रोजेक्ट का रिस्क इतना है, so that say require the return of 16%. उनकी करेंसी का, आई एम सॉरी, मेरी करेंसी का रेट ऑफ इंटरेस्ट है 9%. मेरी करेंसी का रेट ऑफ इंटरेस्ट है 9%, और ये प्रोजेक्ट में इतना रिस्क है जिसकी वजह से मुझे 16% का रिटर्न चाहिए. उनकी करेंसी का रेट ऑफ इंटरेस्ट है 7%. तो उनकी करेंसी में मुझे क्या रिटर्न चाहिए, उसको हम लोग बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट करेंगे ऐसा. So what we will do, friends, we will apply the formula like this: 1 plus RF divided by 1 plus cost of capital is equal to again 1 plus RF divided by what? 1 plus cost of capital. ऐसा करके हमको ये फॉर्मूला यूज करना है. This is the way we'll make the calculation of the risk adjusted cost of capital. So by using this formula, we can make the calculation of the foreign currency adjusted cost of capital. So now friends, we are supposed to make calculation of this as balancing figure.
उसके लिए हम लोग क्या करेंगे फ्रेंड्स, इट इज 1 प्लस के इज इक्वल टू 1.07 इंटू 1.16 डिवाइडेड बाय 1.09, ऐसा किया जाएगा. So now K cost of capital is 1.07 into 1.16 divided by 1.09. जो भी आंसर है उसमें से हम लोग एक को डिडक्ट करेंगे, सो -1. और ये जो भी आंसर है हमारा उसको क्या किया जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई किया जाएगा in order to get answer in percentage term. This is what we are supposed to do. So यहाँ पे 1.07 into 1.16 जो भी आंसर है डिवाइडेड बाय 1.09, जो भी आंसर है उसमें से एक डिडक्ट किया into 100 for getting answer in percentage term, 13.8716%. So the final answer would be 13.8716%. That is what we understand. तो ऐसा करके फॉरेन करेंसी का एडजस्टेड कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट किया जाएगा यूजिंग द इंटरेस्ट रेट्स, और सेम कैलकुलेशन कर सकते हैं फ्रेंड्स यूजिंग द इन्फ्लेशन रेट. सो मेथड नंबर 2, in that you can use the inflation rates and need not to say, but still I specify that examination में दोनों में से कोई भी एक ही मेथड करना है, दोनों ऑफ कोर्स नहीं करना है. ये तो इनिशियल क्वेश्चन है इसलिए मैं समझाने के लिए दोनों मेथड कर रहा हूँ. ईस्ट अफ्रीकन डॉलर एंड रुपीस, so it is 1 plus inflation divided by 1 plus cost of capital is equal to, on the opposite side, again 1 plus inflation divided by 1 plus discounting rate. We understand that say ईस्ट अफ्रीकन डॉलर करेंसी का इन्फ्लेशन रेट है 3%, उनका हमको फॉरेन करेंसी एडजस्टेड कॉस्ट ऑफ कैपिटल फाइंड करना है. सो 1 प्लस के, हमारा खुद का इन्फ्लेशन रेट है 1.049252, और ये प्रोजेक्ट में से हमको रिटर्न चाहिए 16% का फ्रेंड्स. बस खत्म हो गया. Now we'll make the calculation of 1 plus k as balancing figure. It is 1.03 into 1.16 divided by 1.049252. So k is equal to 1.03 into 1.16 divided by 1.049252. जो भी आंसर है उसमें से हम लोग एक को डिडक्ट करेंगे, सो -1. ये जो भी आंसर है उसमें से हम लोग एक को डिडक्ट करने के बाद जो आंसर आएगा उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे. सो 1.03 into 1.16 divided by 1.049252, जो भी आंसर है -1, जो भी आंसर है इंटू 100, सो 13.8716%. ऐसा करके हमको फॉरेन करेंसी का एडजस्टेड कॉस्ट ऑफ कैपिटल फाइंड करना है. तो ये हमारा पहला स्टेप खत्म हुआ जिसपे हमने फॉरेन करेंसी का एडजस्टेड कॉस्ट ऑफ कैपिटल फाइंड किया. अभी हम लोग दूसरा स्टेप लेंगे, स्टेप नंबर 2. कैलकुलेशन ऑफ एनपीवी, ब्रैकेट में लिख रहा हूं मैं ईस्ट अफ्रीकन डॉलर करेंसी. उसमें क्या किया जाएगा, इट इज ईयर 0, एंड ऑफ ईयर 1, एंड ऑफ ईयर 2. हम लोग कैश फ्लोज कैलकुलेट करेंगे ईस्ट अफ्रीकन डॉलर करेंसी टर्म में. आई एम सॉरी, हमको दे रखा है, उसको हमें डिस्काउंट करना है
at the rate of 13.8716%, या 13.87 भी लिख सकते हैं, 2 डेसिमल तक अपने जाते हैं, और फिर हम लोग उसका प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, एंड डेफिनेटली दिस प्रेजेंट वैल्यू वुड बी इन ईस्ट अफ्रीकन डॉलर करेंसी। सो रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू राइट डाउन आंसर अलॉन्ग विथ मी। ये 15,000 नेगेटिव होगा, 7,500 पॉजिटिव होगा, और ये 9,500 पॉजिटिव होगा। 1 डिवाइडेड बाय 1.1387, फर्स्ट ईयर का फैक्टर है 8782, you press is equal to, you'll get the second year factor 7712। हमको और कुछ नहीं करना है। अच्छा, तो अभी क्या होगा फ्रेंड्स, वी विल बी हैविंग से ईयर 0 कैश आउटफ्लो 15,000, एंड ऑफ ईयर 1 7,500 into 0.8782, that is 6586.5। सेकेंड ईयर में 9,500 into 0.7712, that is 7326.4, प्लस 6586.5, ये दोनों को ऐड किया, उसमें से इन्वेस्टमेंट 15,000 को डिडक्ट किया, सो इट इज 1087.1। तो ये हमारा एनपीवी आ गया, and unfortunately this is again negative NPV, so we understand that so the project is not worth undertaking। देखो यहाँ पे हम लोग डिसीजन तो ले ही सकते हैं, ऐसा थोड़ी डिसीजन नहीं ले सकते हैं that the project has negative NPV, इसलिए प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। in spite of that हम लोग और एक वर्किंग करते हैं wherein this foreign currency NPV is converted into domestic term by using the spot exchange rate। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे स्टेप नंबर 3, कैलकुलेशन ऑफ एनपीवी, ब्रैकेट में लिख रहा हूं मैं रुपीस टर्म में। अच्छा, स्पॉट एक्सचेंज रेट क्या है फ्रेंड्स, 2 ईस्ट अफ्रीकन डॉलर पर रुपी। सर स्पॉट एक्सचेंज रेट को क्यों इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि एनपीवी ईयर 0 टर्म में होता है और स्पॉट एक्सचेंज रेट भी आज का ही होता है, इस वजह से। तो देखो ईस्ट अफ्रीकन डॉलर और रुपीस, 2 ईस्ट अफ्रीकन डॉलर इज इक्वल टू 1 रुपी, सो नेगेटिव 1087.1 is equal to this amount of rupees, so it is negative 1087.1 into 1, that does not make any sense, divided by 2, so divided by 2, 543.55, it is in rupees term and the answer is negative, so we understand that say basically the project should not be undertaken। so final answer is do not invest in the project। चलो पूरे क्वेश्चन का एक मैं समरी दे देता हूं। क्वेश्चन में ऐसा दे रखा है, सो देयर इज एन इंडियन कंपनी व्हिच इज गोइंग टू अंडरटेक अ प्रोजेक्ट इन ईस्ट अफ्रीका एंड वी हैव बीन प्रोवाइडेड विद द रेलेवेंट इंफॉर्मेशन कि ईस्ट अफ्रीकन करेंसी में हमारा कैश फ्लोज क्या होगा, वहां का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, वहां का इन्फ्लेशन रेट क्या वो दे रखा है, और हमारा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न दे रखा है। फ्रॉम द इंडियन कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू वी हैव टू डिसाइड वेदर टू अंडरटेक अ प्रोजेक्ट ओवर देयर और नॉट। ऐसे क्वेश्चंस में जनरली 2 मेथड से डिसीजन लिया जा सकता है, एक तो होता है डोमेस्टिक टर्म इन अ वे दैट्स द होम करेंसी अप्रोच, और दूसरा होता है फॉरेन करेंसी अप्रोच। ऐसा करके 2 मेथड्स होते हैं। क्वेश्चन में कई बार हमको क्लैरिफिकेशन दे रखा होगा कि आपको कौन सा मेथड अडॉप्ट करना है। अगर ऐसा क्लैरिफिकेशन दे रखा है देन वी डू नॉट हैव एनी चॉइस बट टू फॉलो दैट मेथड ओनली। अगर ऐसा कुछ क्लैरिफिकेशन नहीं है देन इन दैट केस वी कैन डू आंसर बाय आइदर ऑफ द मेथड। इनिशियल क्वेश्चन होने की वजह से मैं दोनों मेथड आपको समझा रहा हूं। होम करेंसी अप्रोच में क्या किया जाएगा फ्रेंड्स, सबसे पहले
फॉरेन करेंसी कैश फ्लोज को डोमेस्टिक करेंसी में कन्वर्ट करने के लिए उस वक्त क्या एक्सचेंज रेट चल रहा होगा उसका हमको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। उसको टेक्निकली फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट या एक्सपेक्टेड स्पॉट एक्सचेंज रेट कहा जा सकता है। उसको दो मेथड से फाइंड किया जा सकता है, IRPT और ट्रिपल पीटी। ट्रिपल पीटी के लिए हमको दोनों करेंसी का इन्फ्लेशन रेट चाहिए, हमको एक ही करेंसी का दे रखा है। So using first of all the basic formula of like NRI, that is 1 plus N is equal to 1 plus R into 1 plus inflation, we make the computation of the inflation rate for rupee currency, that comes to 4.9252. उसके बाद फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट कैलकुलेट करेंगे एज पर ट्रिपल पीटी। दूसरा मेथड क्या हो सकता है फ्रेंड्स, हम लोग IRPT को यूज कर सकते हैं। अगेन उसमें हम लोग क्या करेंगे फ्रेंड्स, वी विल make the calculation of the forward exchange rate using interest rates। दूसरा स्टेप वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है बट सिली मिस्टेक्स को अवॉइड करने के लिए मैं ऐसा स्टेप करवाता हूं और मैं सजेस्ट करता हूं कि आप लोग कीजिएगा। फॉरेन करेंसी के कैश फ्लोज को डोमेस्टिक करेंसी में कन्वर्ट करने के लिए एक्सचेंज रेट से मल्टीप्लाई किया जाएगा या डिवाइड किया जाएगा। 2 ईस्ट अफ्रीकन डॉलर इज इक्वल टू 1 रुपी, तो 15,000 इज इक्वल टू हाउ मच, तो 15,000 into 1 does not make a sense, divided by 2, it means that's the cash flows of East African dollar currency term divided by exchange rate। okay, फिर NPV हम लोग कैलकुलेट करेंगे, that would be directly in rupees term। फॉरेन करेंसी के कैश फ्लोज को हमने एक्सचेंज रेट से डिवाइड करके हमारा डोमेस्टिक करेंसी का कैश फ्लोज आ गया, उसको हमने डिस्काउंट किया 16% से और हमारा NPV आ गया। NPV इज नेगेटिव, इसलिए बोला कि भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। दूसरा मेथड जिसमें हम लोग फॉरेन करेंसी का अप्रोच अडॉप्ट करेंगे, जिसमें हम लोग क्या करेंगे फ्रेंड्स, सबसे पहले फॉरेन करेंसी का एडजस्टेड कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि जो 16% दे रखा है ना वो रुपी करेंसी का है। फॉरेन करेंसी अप्रोच में डायरेक्टली फॉरेन करेंसी के कैश फ्लोज को डिस्काउंट किया जाता है। अच्छा, तो वी अंडरस्टैंड दैट्स ओवर हियर using the interest rates you can calculate the same, or using the inflation rates you can calculate the same। लॉजिक बहुत सिंपल है, मेरी करेंसी में जो इन्फ्लेशन रेट है और मेरी करेंसी में जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है उसके हिसाब से वहां का जो इन्फ्लेशन रेट है तो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न क्या होगा, एंड दैट कम्स टू 13.8716। फिर NPV हमने कैलकुलेट किया, दैट इज इन ईस्ट अफ्रीकन डॉलर करेंसी टर्म। कैश फ्लोज को डायरेक्टली डिस्काउंट करके उसमें कोई दिमाग नहीं लगाने का है। इंपॉर्टेंटली ये जो NPV है वो डोमेस्टिक करेंसी सॉरी फॉरेन करेंसी में है, यूजिंग स्पॉट रेट उसको हमें डोमेस्टिक करेंसी में कन्वर्ट करना है, एंड बेस्ड ऑन दैट से वी टेक द डिसीजन।